Hello all, welcome back to another interesting session of Ankita's tutorial. Today my topic is AI, that is artificial intelligence. So I will be discussing a basic introduction about artificial intelligence. So before proceeding the video, please subscribe my channel if you are new to my channel, and do not forget to like, share my video and forward this video as much as possible so that the students, those who are preparing for the job interviews, it will be really benefited for them. And if you have any doubt regarding any video or regarding any particular section, then let me know in the comment section so that in my next video I will cover that. So let's get started. My topic is today artificial intelligence. Artificial intelligence, in short, that is AI. So what is AI? AI means, if I will break AI into sentence, two words I can say. A means artificial, second one is your intelligence. Artificial intelligence is a very trending topic nowadays, and it has a vast speed in our technology. So artificial means what? Human made or man made, you can say. And intelligence means power of thinking. If I will justify these two terms, it means that, right, artificial means not natural, that is human made, and intelligence means power of thinking. So, and power of thinking, that is intelligence. So what if I will combine the both sentence, that is artificial intelligence means we will design a machine in a particular way where we will put human intelligence, where we can put human intelligence inside the machine. That is what artificial intelligence means. Human made machine which has power of thinking, which has some intelligence. That is what artificial intelligence stands for. So if I will go for the definition, artificial intelligence is the study of how to make computer do things which human can do better, और AI can means हमें कुछ ऐसे मशीन डिजाइन करेंगे जिसमें ह्यूमन के थॉट प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लांट करेंगे इनसाइड द मशीन, जो कि ह्यूमन की तरह सोच सके, इवन ह्यूमन की तरह सर्टेन टास्क परफॉर्म कर सके, इवन बेटर देन दैट. ओके, so AI can cause a machine to work like a human, as I told you before. So in other words, we can see AI is nothing but machine plus human intelligence. Just in a single word, AI is nothing but machine plus human intelligence, means we will replicate human intelligence inside the machine to think like and we will make the machine think like a human. That is what artificial intelligence for you. Now we will see कौन सा रीजन है जिसके वजह से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ट्रेंडिंग पे है. रीजंस ऑफ बूस्ट इन एआई मीन्स, इसका फर्स्ट क्या मैंने लिखा है, सॉफ्टवेयर और डिवाइस कैन बी मेड टू सॉल्व रियल टाइम प्रॉब्लम्स. सी, हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे या फिर कुछ ऐसे डिवाइस बनाएंगे और ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर डिवाइस के अंदर डालेंगे जो कि सॉल्व कर सकता है रियल टाइम प्रॉब्लम्स. नाउ व्हाट इज दिस रियल टाइम प्रॉब्लम्स? सी, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स डिजाइन किया जाता है, कुछ कोड हम लिखते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर कंडीशंस अप्लाई करते हैं. इफ दिस इज द केस, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट. बट कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम के लिए हमें इमीडिएट सोल्यूशन मिल सकता है, दोज प्रॉब्लम्स कम विद अ इंस्टेंट सोल्यूशन, मीन्स ASAP we will find a solution. That is what real time problems. So real time problem solve करने के लिए AI बहुत ही हेल्पफुल होता है. ओके, दिस इज द फर्स्ट रीजन जो कि AI को बूस्ट कर रहा है. सेकेंड वन, क्रिएशन ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट. वर्चुअल असिस्टेंट मीन्स व्हाट? विच विल असिस्ट यू, विच विल हेल्प्स यू इन योर सर्टेन वर्क्स. ओके, सो हम अगर AI की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वर्चुअल असिस्टेंट और जैसे कि डिजिटल असिस्टेंट है, जो कि जिसके वजह से ये और भी ज्यादा बूस्ट हो रहे हैं. जैसे कि आपका सीरी जो कि एप्पल का है, एलेक्सा, इको अमेजन का है. दीज आर मशीन्स एज असिस्टेंट व्हिच हेल्प्स ह्यूमन. मीन्स whatever you will ask the question, you will get an answer from them. This is the second reason. Now third one is your robot development. ये एक ऐसे फील्ड है जहाँ पे AI का यूज बहुत ही भास्ट और यूज तरीके से हो रहा है. मीन्स
हाउ रोबोट विल थिंक लाइक ह्यूमन, हम कुछ ऐसे रोबोट्स डिजाइन करें जो कि ह्यूमन की तरह सोच सके. मीन्स दे हेल्प इन डेंजरस इन्वायरमेंट कंडीशन. मीन्स there will be some particular situation where we do not want to send human, so instead of sending a human to do that particular task, if we are sending robot, so that he that can perform that particular task, then it will be easy. So जैसे कि कौन से सिचुएशन है, जैसे कि न्यूक्लियर अफेक्टेड साइड है, कहीं पे बॉम्ब डिफ्यूज करना है, जहाँ पे हम लोग ह्यूमन को भेजना नहीं चाहते हैं, अगर हम रोबोट सेंड करके काम कर रहे हैं तो वो एक इजी प्रोसेस होता है. यहाँ पे भी एआई का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है. नेक्स्ट वन इज योर लास्ट वन इज योर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज. विथ एवरी न्यू टेक्नोलॉजीज इट इज वेरी ऑब्वियस जॉब अपॉर्चुनिटीज कम. जो भी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रहा है नया, तो उसका फर्स्ट मतलब बेसिक फायदा उसका क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होता है. तो ये 4 रीजन है जो कि एआई को बूस्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज अभी एप्लीकेशंस क्या क्या है, कौन से फील्ड में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं और इसका गोल्स क्या क्या है. व्हाट इज द गोल्स ऑफ एआई, क्या क्या गोल्स है एआई का. फर्स्ट वन इज योर रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. मीन्स वी विल रेप्लिकेट the intelligence, human intelligence inside a machine, or we can replicate human thought process inside a machine. That is what replication of human intelligence. That is the first goal of AI. Second one is your solving problems that require knowledge. Means certain problems. That means only the real time problems. When we are talking about real time problems, means AI needs to solve those problems that require certain knowledge. Real time problems, as I told you, the problems which come with the instant solution. The more and more we can understand the problem, it is easy for us to find a solution for that. That is what a real time problem. It is not like we will think a solution next day or next month, after 2 years. No, it's not like that. It's only about as soon as possible we can find a solution. That is what AI का ये फोकस है कि कुछ उसके सर्टेन नॉलेज है जो कि ये रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग अ मशीन दैट कैन डू ह्यूमन इंटेलिजेंस टास्क. यही तो इसका मेन मोटो है कि जो एक ऐसे हम मशीन बनाए जो कि ह्यूमन की तरह सोच सकता है, ह्यूमन की तरह टास्क परफॉर्म कर सकता है, इवन बेटर कर सकता है ह्यूमन से. सो फर्स्ट क्या है, प्लेइंग ए चेस, automated car driven. In my previous video I have told you about IoT, that is Internet of Things. इसमें automated car driven का concept आया था. टेस्ला जो था, टेस्ला ने अपना कार बनाया है फर्स्ट ऑटोमेटेड कार, जो कि the car can be operated without any driver. So playing the chess, ये भी देखा गया है. AI power system has defeated a chess champion. जो AI power system जो सिस्टम है, एक वो सुपर कंप्यूटर था, that is Deep Blue. फर्स्ट वो डीप थॉट था, लेटर IBM ने उसको डिजाइन किया सुपर कंप्यूटर, दैट इज डीप ब्लू. वो डीप ब्लू जो है वो एक एआई चेस एक्सपर्ट सिस्टम था जो कि एक चेस चैंपियन को हराया था. एंड दिस इज कंसिडर्ड एज, एंड द डीप ब्लू विक्ट्री कंसिडर्ड एज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ एआई. सो यहाँ पे जो सिस्टम था, जो एआई पावर सिस्टम था, दैट इज नोन एज द डीप ब्लू supercomputer, that is designed by the IBM. Next one is your providing advice to user. इसका ये एक गोल है. This can be possible through virtual assistant. जैसे कि एडवाइस दे यूजर को वो दे सकता है. मीन्स जैसे कि आपका है जो सीरी हो, एलेक्सा हो, इको हो, कोर्टाना हो, जो भी आप उसको पूछे वो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा और वो आपको आंसर देगा. दिस इज ऑल अबाउट गोल ऑफ एआई. नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ एआई. कौन से फील्ड में एआई को अप्लाई किया गया. एप्लीकेशंस ऑफ एआई में हम देखेंगे कौन से फील्ड में एआई है हैज शोन इट्स परफेक्शन. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज एआई इन गेमिंग, लाइक चेस, पोकर, लूडो, टिक टैक टो. आजकल ऑनलाइन में सब गेम्स खेलते हैं. So means machine can think large number of possible move. Means one side human, another side machine, and machine will play games with human with a large number of possible move with machines heuristic knowledge. Next one is your AI in NLP. यहाँ पे AI के applications बहुत ज्यादा है. Means NLP stands for Natural Language Processing. Means AI method of communicating with system using a natural language. We human communicate with other human through a language.
So language is a mode of communication, we can say. So if machine wants to communicate with something, then machine wants to communicate with AI, then AI definitely need a certain language through which it can communicate with the system. That's what means AI method of communicating with system using a natural language. That language is English, and so that machine can understand human also. And example है जैसे कि आपका virtual assistant बोला बताया गया था, Alexa, Siri. These virtual assistant now can understand English, and apart from English they can also understand regional language, जैसे कि हिंदी भी वो अभी समझ सकते हैं. So this is all about the natural language processing, where AI को अप्लाई किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज योर AI इन हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में क्या मेन कॉन्सेप्ट है? फास्ट डायग्नोसिस. अगर डायग्नोसिस फास्ट हो जाए तो पेशेंट के ट्रीटमेंट करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब बहुत इजी हो जाता है. द फास्ट वी कैन डायग्नोसिस द पेशेंट्स प्रॉब्लम, we can start or the doctor can start the treatment according to that. So means a surgeon, और ये हो गया आपका डायग्नोसिस के अंदर. और एक कंसेप्ट आया है रोबोट्स के, जैसे कि मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी ये टॉपिक कवर किया था कि रोबोट्स कैसे हेल्थ केयर सिस्टम में आजकल बहुत यूजफुल हो रहे हैं. वैसे ही AI में रोबोट्स यूज होते हैं, जैसे कि मीन्स अ सर्जन फ्रॉम इंडिया कैन परफॉर्म सर्जरी फॉर अमेरिका विथ सर्टन रोबोट. ये भी यहाँ पे भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है AI में, रोबोट के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भी एप्लीकेशन है. नेक्स्ट वन इज योर AI इन finance with adaptive intelligence, means which help in making automatic chatbots and algorithm trading. means ऐसे एल्गोरिथम डिजाइन किया जाएगा जो एल्गोरिथम बोलेगा कि कौन सा शेयर आपको मार्केट में बाय करना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं करना चाहिए. मीन्स दैट इज द कॉन्सेप्ट. यहाँ पे फिनेंस के केस में AI का यूज हो. मीन्स एल्गोरिथम विल हेल्प यू that which share you should buy and which share you should not. Next one is your expert system. If we are facing any kind of problem in our for a particular thing or in our study, then we will go for a teacher or we will go for a tutor. We will Google that. We will refer YouTube so that we can clear our concept or we can come with a solution. So expert system में क्या काम है? यहाँ पे भी जब सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो कुछ एक्सपर्ट सोल्यूशन लेता है, जैसे कि इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, मशीन एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग रीजनिंग एंड एडवाइस. ये अब जब ह्यूमन की बात करते हैं तो हम लोग ये ट्यूटर वगैरह रेफर करते हैं. अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या है, एक कुछ कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर का, मशीन्स का एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन का, जो कि आपको रीजनिंग और एडवाइस दे सकता है. दिस इज व्हाट एक्सपर्ट सिस्टम फॉर यू. AI इन द डेटा सिक्योरिटी. यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है? To stop cyber crime, to make the data or applications secure. It helps in making the data or you have those applications secure. Example AEG bot, AI2, ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या करते हैं? Means this can detect bug in a software and can stop cyber attack in a efficient and significant manner. This is what the applications for AI in data security. Next one is a computer vision. To understand the visual automatically by machine. This is what computer vision means. इसका एग्जाम्पल है इमेज प्रोसेसिंग. ये तो एक हालांकि एक टॉपिक है, पर इमेज प्रोसेसिंग का बेसिक काम क्या है? ये AI को यूज करता है. मीन्स AI processes an image, improving quality of an image based on algorithm experience. कुछ एल्गोरिथम सर्टन डिजाइन किया जाता है, उस एल्गोरिथम के चलते वो एक इमेज को प्रोसेसिंग करता है to improve the quality of that image. So that is what image processing. Next one, AI कहाँ अप्लाई किया जाता है? Speech recognition. This is also a vast topic. It helps in extracting the meaning of the sentence by human talk. Means जैसे कि slangs language remove करना, background noise remove करना speech में से. So वो उसका काम होता है कि वो extract करता है meaningful चीजें, मीनिंगफुल सेंटेंसेस ह्यूमन टॉक से. नेक्स्ट वन इज योर रोबोटिक्स. रोबोटिक्स में मैंने जैसे कि आपको बार बार बोल रही हूँ AI का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है. जैसे कि एरिका एंड सोफिया दो रोबोट डिजाइन किया गया है. दे आर ह्यूमनॉइड रोबोट्स. दे कैन टॉक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन एंड कैन इंटरेक्ट विद ह्यूमन. दे हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस. द मशीन्स हैव फीलिंग्स एंड इमोशन. दे कैन इंटरेक्ट विथ ह्यूमन, दे कैन टॉक विथ ह्यूमन. नाउ सोफिया का लिटिल सिस्टर भी आ गई है जो कि लिटिल सोफिया है. This is all about the AI applications. Next we will see
what are AI comprises of which component? Next one is your what are AI basically comprises of. So first is your AI ये चीजें को लेके comprise किया गया है, जैसे कि computer science means if we are talking about AI then obviously computer science will come under limelight. Next one is your biology, neuroscience, maths, mathematics, psychology and sociology. ये सब चीजों को फोकस किया गया है, जैसे कि all are combination of reasoning, learning and problem solving, language understanding. ये सब पर्पस के लिए इसको कंबाइन किया गया है, जैसे कि the things we are teaching to human now we will teach the machine so that the machine will think and behave like, act and behave like human. So see, first जब हम AI की बात करते तो कंप्यूटर साइंस में इसके एप्लीकेशन है. नेक्स्ट बायोलॉजी और न्यूरल साइंस क्यों आते हैं आपके विजन में? मीन्स वी आर रेप्लिकेटिंग, बिकॉज वी आर रेप्लिकेटिंग ह्यूमन ब्रेन इनसाइड द मशीन, so definitely we will refer to biology and neuroscience. Means the physiological structure of brain that we are implementing inside machine. Means we cannot implement directly neuron inside the machine, right? So for that we have to create artificial neuron. So and उसको हम कैसे create करेंगे? Through some mathematical equations. इसके लिए मैथ्स की जरूरत है और कुछ एल्गोरिथम डिजाइन किए जाएंगे जिसके हिसाब से आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्रिएट होगा. उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको मशीन के इनसाइड हम लोग इम्प्लांट करते हैं. दैट्स व्हाई बायोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस कम टू माइंड एंड मैथ्स ऑल्सो. नेक्स्ट साइकोलॉजी, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग मशीन को ह्यूमन की तरह बना रहे हैं, तो ह्यूमन के साइकोलॉजी को अगर स्टडी कर रहे हैं तो ह्यूमन के साइकोलॉजी को स्टडी करना जरूरी है मशीन बनाने के लिए. सो साइकोलॉजी कम अंडर विजन. नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी. मशीन बनाने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. So how things work in your social environment. So you can say these are, I am not saying that the exact component through which AI has been made up, but these are, you can say AI can be comprised of these components. Okay. Next our concept is classifications of AI. So AI has been categorized into three types. First one is a narrow AI, also known as weak AI. Next one is an evolutionary AI. Another one is a strong AI. Narrow AI means or weak AI means able to perform certain tasks, okay, with intelligence, but cannot perform beyond its field and beyond its limitation. Means एक ह्यूमन अगर एक पर्टिकुलर टास्क को करता है तो उसको करने के लिए 100 तरीके सोचते हैं, पर मशीन से अगर वही टास्क को करे तो उसके अंदर जितना लॉजिक दिया गया है वो उसी लॉजिक को अप्लाई करके वो काम करेगा. इट कैनट डू टास्क और इट कैनट परफॉर्म टास्क आउट ऑफ द बॉक्स. Next one is not concern how the tasks are performed, but it concern with performance and efficiency. बैकग्राउंड में कैसे काम हो रहा है वो उसके ऊपर फोकस नहीं करता, कैसे टास्क परफॉर्म हो रहा है और कितने एफिशिएंट वे में टास्क परफॉर्म हो रहा है, ये नैरो एआई के अंदर आता है. ओके. जैसे कि एग्जांपल है फ्लाइंग अ मशीन. सपोज एक मशीन फ्लाई करने के लिए बोला गया तो वो मशीन फ्लाई करेगा. इट्स नॉट लाइक इट विल प्ले क्रिकेट. सिमिलरली यूजिंग सर्टन लॉजिक्स, जैसे कि चेस खेलने के लिए जो लॉजिक्स दिया गया है वो उसी लॉजिक को यूज करके चेस खेलेगा. नेक्स्ट वन इज योर जैसे कि एप्पल और सीरी, इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं. जैसे कि सीरी के अंदर जितना ही फंक्शंस डाला गया है और जितना है उसको कॉन्सेप्ट बताया गया है उस हिसाब से सीरी परफॉर्म करता है. उसके आगे जाके वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसका एक रेंज, उनका सब लिमिट होता है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं. दिस इज व्हाट नैरो एआई और वीक एआई फॉर यू. नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशनरी एआई. इट इज अ स्टडी एंड डिजाइन ऑफ मशीन्स दैट स्टिम्युलेट सिंपल क्रिएचर्स एंड अटेम्प्ट टू इवॉल्व. क्रिएचर्स के ऊपर जैसे कि एंट हो, बीज, इसके ऊपर सर्टन एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है जो उनके स्ट्रक्चर ये सब को डिफाइन करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशनरी एआई. नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एआई. स्ट्रॉन्ग एआई इज द स्टडी एंड डिजाइन ऑफ मशीन्स दैट स्टिम्युलेट ह्यूमन माइंड टू परफॉर्म इंटेलिजेंट टास्क. कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है मशीन्स सो दैट ये ह्यूमन माइंड के साथ स्टिम्युलेट करके कुछ इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि ऑब्वियसली बिकॉज वी आर रेप्लिकेटिंग ह्यूमन माइंड इनसाइड द मशीन, सो बोरोइंग आइडिया फ्रॉम साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस. और ये क्या क्या सॉल्व करते हैं, जैसे कि कोई आप चीजें भूल गए, फॉरगेटिंग थिंग्स, जेनेटिक्स, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये सब कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग एआई. और एक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है जैसे कि सुपर एआई. दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बिकॉज नो सच प्रूफ एग्जिस्ट टिल नाउ,
पर सुपर एआई में क्या होगा कि दो मशीन से कम्युनिकेट करेंगे एंड दे विल क्रिएट देयर ओन लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज. सो दिस हैज नो सर्टन प्रूफ राइट नाउ. दिस इज अ हाइपोथेटिकल concept and it can be developed in future. This is for super AI and these are all about classifications of AI. And if I will go for advantage and disadvantage, आपको पता है कि एडवांटेज में क्या आएगा, इसका एक्यूरेसी है, हाई स्पीड है, एरर लो है. बिकॉज एक्यूरेसी और हाई स्पीड है तो इसका मतलब क्या, वी आर एडिंग मोर एंड मोर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड द हाई फॉर द स्पीड ऑफ द सिस्टम टू मिनिमाइज द एरर. ये इसका एडवांटेज है. और डिसएडवांटेज में क्या है, बिकॉज हम बहुत सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट डेफिनेटली हाई है. और एक क्या है कि हम लोग मशीन डिपेंडेंट ज्यादा हो रहे हैं तो दैट इज अ डिसएडवांटेज. और बहुत ज्यादा फील्ड में, और इसका और भी क्या एडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा फील्ड में जहाँ पे हम लोग ह्यूमन को नहीं भेजना चाहते वहां पे मशीन के थ्रू काम हो सकता है. सो दीज आर सम बेसिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई. Disadvantages of AI. Thank you for watching my video. Once again, I am saying you all, please subscribe my channel if you are liking my video and suggest me topic if you are if you really want to see next video in that particular topic. Then let me know in the comment section and I'll get that for you. Thank you.